So till now we know the syllabus of MHCET. हमें पता है MHCET में sections कितने हैं, उसमें topics कितने हैं. At the same times we know कौन से topic का कितना importance है. Because we had analyzed last 6 year का MHCET paper and we know what topic is how much important. Now after this we come on to the strategy for 99 percentile. So we know that this workshop is called as MHCET 99. So all that we are discussing is a strategy to gain that 99 percentile. First we understood the syllabus. Now we develop a strategy. Strategy means कौन से section में से कितने question कितने time में attempt होने चाहिए तब जाके मुझे 99.99 percentile मिलेगा और let's say 99. Okay, after that we'll see वो 0.99. There is a different battle for that. So let's see that now. What should be your strategies to score 99 percentile? So as all of us know this is what we have discussed. कौन से section में कितने question है? Cons 50, reasoning 100, which includes logical reasoning and visual reasoning, and your language comprehension, which has 50 question, total 200 questions. Okay, something that we know it comprehensively. From this we come on to what should be your strategy. कौन से section में से कितने question attempt करोगे कितने time में? Let's see that now. So QA and DI you have 50 questions. I am saying you have to attempt here 45 questions. If you can attempt 50 questions, nothing like it. But कुछ questions हो गए, maybe वो questions difficult नहीं है, but lengthy है. They will take time, so you are leaving them. Or you will get some question जिसका language तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है. You are not understanding कि exactly वो क्या दिया है और क्या पूछ रहा है. तो शायद अगर सिंपल वे में वो पुट इन किया जाता तो वो समझ जाता, बट वो लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है. ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू आर अटेम्प्टिंग लेट्स से 45 questions here, out of which you get 40 correct, so that you score 40 marks. As we all know, you have 1 marks for one right answer in CET, and then there is no negative marking in CET. We know that. So 40 you are getting it correct. Okay, now this is where you have to improve. Okay, with respect to accuracy, you cannot say I will attempt 45 and I'll get 30 correct. This is maths, this is quants. इसमें आंसर आ रहा है. ओके, सो तुम्हें पता है वो आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है बिकॉज यू आर सॉल्विंग इट, राइट. देयर इज नो स्कोप टू गेट रॉन्ग हियर. वर्बल में शायद हो सकता है इफ यू आर नॉट डन गुड प्रैक्टिस दैट यू आर अटेम्प्टिंग एंड यू आर गेटिंग इट रॉन्ग, बट मैथ्स में ऐसे नहीं हो सकता. ओके, एंड आई एम गिविंग हाउ मच ऑफ टाइम हियर 40 minutes, विच मीन्स 1 minute पर क्वेश्चन. हाँ, ऐसा ले सकते हो 1 minute पर क्वेश्चन बिकॉज क्वेश्चन लेंदी होते हैं एंड इफ यू डोंट हैव गुड स्पीड then it's okay to take 1 minute per question. If you can finish this in 35 to 37 to 32 minutes, nothing like it. But 40 minutes ले सकते हो 1 minute per question for your quant section. Quant and DI. Okay, that is what will be strategy for QA and DI. Let's come on to logical reasoning. अब हम इसमें से visual reasoning नहीं देख रहे. Logical reasoning means वो सारे puzzles वाले question जो हमने देखे. At the same time, you have critical reasoning. Okay, so puzzles and critical reasoning we are talking about here, visual reasoning nahi. So 75 questions aa gaye wahan se. Now how much of time will you take here? So let's say 60 minutes and you attempted around 60 questions here and you got 50 correct, so that you get 50 marks from this part. ओके, नाउ यू विल बी सरप्राइज लाइक सर वो हम 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ 75 में से 60 मिनट्स में 60 क्वेश्चंस ही क्यों अटेम्प्ट कर रहे हैं? बिकॉज वो जो 15 क्वेश्चंस है वो है डिफिकल्ट पजल्स. अगर किसी ने प्रीवियस वर्कशॉप देखा है और उसे रिकॉल कर रहे हो अभी, तो क्या याद आ रहा है? वो बताया था मैंने जब हम सर्कुलर अरेंजमेंट कर रहे थे. ओके, आई टोल्ड यू समटाइम्स द पजल विल बी सो बिग, okay, and it will be so confusing that even if you break your head in the exam, सिर्फ time waste होगा. You will not get anything in your hand, right? That is the kind of puzzle we want to avoid. क्योंकि अब वो ज़्यादा time लेगा. अगर वो click हो जाता है, nothing like it. But MHCET, since this is a workshop only on MHCET, they ask very difficult puzzle beyond the level of CAT. इतना difficult puzzle आता है. Okay, so दो पजल शायद तुम छोड़ सकते हो क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट है. अभी जरूरी नहीं है वो सर्कुलर होगा, शायद टैबुलर है, शायद सीक्वेंसिंग है. ओके, एंड व्हाटएवर आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, आई होप यू नो इट, क्योंकि हम ये सब प्रीवियस वर्कशॉप में डिस्कस कर चुके हैं. तो जो क्वेश्चन छोड़ने वाले वो एकदम क्लियर होना चाहिए दिमाग में कि यही छोड़ सकते हैं हम, और छोड़ना तो है. यू कैन नॉट अटेम्प्ट 200 क्वेश्चंस, ओके, अनलेस यू हैड प्रैक्टिस दिस अ लॉट. You cannot attempt 200 question. Okay, it is slightly difficult for an average student.
who is practicing good enough amount of problems to attempt 200 would be difficult. So that's what I'm saying. यहाँ से you can leave those questions because that will be very time consuming. और इतना जल्दी छोड़ना है वो देख के या देखते समझ में आना चाहिए नहीं ये time consuming है, उस पर 5-10 मिनट डालकर दूसरे क्वेश्चन पे नहीं जाना है, which means you are wasting 10 minutes, which means 10 questions are gone. JB, IMS, Sydenham, all is gone. Okay, that is where you have to come up with the right strategy for this. Okay, so that's what I'm saying. 50 from here, 40 from here. So currently you have 90 marks और time कितना खत्म हुआ है 60 plus 40, let's say 100 minutes. टाइम कितना होता है हमारे पास एग्जाम में 150 मिनट्स. तो अभी और 50 मिनट्स बचे और हमारे पास कितने मार्क्स आ चुके हैं अभी 100 मिनट्स में 90 मार्क्स आ चुके हैं हमारे पास. ओके, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग. एंड यहाँ पे भी एक्यूरेसी बहुत सेफ रखा है. 60 अटेम्प्ट में से आई एम सेइंग 50 यू गॉट इट करेक्ट. ओके, तो 10 क्वेश्चंस रॉन्ग हो सकते हैं, अभी भी सिली मिस्टेक्स हो गया, ऑप्शन मार्क करने में कोई मिस्टेक हो गया, बट लॉजिकल रीजनिंग में भी राइट आंसर आएगा. ये बिकॉज तुमने पजल सॉल्व किया है तो पजल का तो आंसर पता है ना कि ये इसका आंसर है, राइट. सो लॉजिकल रीजनिंग में भी एक्यूरेसी हाई होना ही चाहिए कि ये भी कॉन्स और डीआई की तरह ही है, करेक्ट आंसर आ रहा है जो तुम मार्क कर रहे हो, गेस वर्क नहीं है यहाँ पे. Okay, so there is no scope of getting wrong unless you make some silly mistakes. Okay, that can be avoided just with the right focus while writing the paper. So अब ये भी clear हो गया हमारे पास क्या what are we supposed to do in this part as well with respect to your logical reasoning as a section. Now let's move on to the next part, which is your visual reasoning, and we will be getting 25 questions here. So out of this 25, I want you to take 20 minutes and do 25 questions. All the 25 questions you are attempting it here and you are getting 20 correct. Okay, so ऐसे हो सकता है पूरे 25 अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो क्योंकि विजुअल रीजनिंग में ऐसा हो सकता है कि एक दो क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट आ जाए, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो. ओके, बहुत सारे पैरामीटर्स, बहुत एलिमेंट्स डाल दिए और लॉजिक कहीं पे तो छुपा हुआ है, ओके, जो तुम्हें दिख ही नहीं रहा है, इवन वाइल स्पेंडिंग 2 minutes ऑन वन क्वेश्चन. सो ऐसा हो सकता है. सो माई पॉइंट हियर इज 25 में से 20 मार्क्स चाहिए और ये आ सकता है, बहुत ही ईजिली आ सकता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 क्वेश्चन डिफिकल्ट हो गए, राइट. 22 भी अगर तुम अटेम्प्ट कर रहे हो तो 20 आना चाहिए. विजुअल रीजनिंग में ऐसे होता है. ओके, आई डोंट नो व्हाट यू हैव लर्नड प्रीवियसली बट व्हाट आई विल टीच यू इन दिस वर्कशॉप यू विल नो एग्जैक्टली क्या 8 टाइप्स क्या है. प्राइमरी लॉजिक में क्वांटिटेटिव लॉजिक क्या होता है, फ्रैगमेंटल लॉजिक क्या होता है, मिरर इमेज, वाटर इमेज कैसे होता है, स्ट्रक्चरल लॉजिक क्या होता है, रिफ्लेक्शन लॉजिक क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है, हाइब्रिड लॉजिक क्या होता है, व्हेन यू कंबाइन ऑल द लॉजिक. सो इतना क्लैरिटी अगर दिमाग में रहा तो एलिमेंट देखते ही 10, 20 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स में क्लिक हो जाएगा. क्योंकि फिर बहुत स्टीरियोटाइप प्रॉब्लम है. इफ यू पिकअप RS अग्रवाल नॉन वर्बल रीजनिंग, अगर वो उतना सॉल्व कर दिया है तो दिस इज डन. Okay, I am not asking you to solve that. I am asking you just to attend those workshop for visual reasoning and practice the visual reasoning ka chapter wise or topic wise test. Okay, that should be good enough for you to crack this section of visual reasoning. So what are we doing here? We are spending 20 minutes. So अब तक 120 minutes हो चुका है और हमारे पास मार्क्स कितने हो गए, यहाँ से हमें और 20 मार्क्स मिलेंगे. सो 120 मार्क्स हो चुके हैं, सॉरी 110 मार्क्स हो चुके हैं. 120 minutes, right? This is what we had done till now. So ऐसा क्यों हो रहा है, that is also I explained you, right? क्योंकि visual reasoning में again you have certain tricks जिससे ये marks आ जाएंगे. If you are thinking कि ऐसे नहीं हो सकता है, I will prove it in the workshop. So done with this. And last we come on to verbal ability. अब सबसे कम टाइम हम verbal ability में ले रहे, 30 minutes में हम 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा रीडिंग है और रीडिंग में भी एज यू नो 15 to 20 क्वेश्चन RC पे आएंगे. और RC के लिए मैंने पहले सिलेबस में ये बताया था क्या वी विल बी यूजिंग समथिंग कॉल्ड एज रीडिंग प्रिंसिपल. ओके, रीडिंग प्रिंसिपल्स क्या होता है, हम पूरा पैसेज नहीं पढ़ेंगे, 20% ऑफ द पैसेज ही पढ़ेंगे जिससे हम 80% ऑफ द क्वेश्चन आंसर कर पाए. तो यहाँ पे हम टाइम बचा रहे हैं, इसलिए ये बोल रहा हूँ कि ऐसे हो सकता है. ओके, दिस इज नॉट इन दी एयर क्या ऐसा करो, ऐसा हम करेंगे साथ में. ओके, वंस यू नो ऑल द ट्रिक्स इन द वर्कशॉप. सो दिस इज व्हाट वी विल बी डूइंग. 50 क्वेश्चन 30 मिनट्स में अटेम्प्ट करने. ओके, अभी यहाँ पे एक्यूरेसी थोड़ा कम हो सकता है. ओके, सो आई एम सेइंग यू गॉट इट 40 करेक्ट. सो अब कितना हो जाएगा यहाँ से, इफ यू गेट 40, 50 कितना मिनट्स, 30 मिनट्स. सो इसमें 30 ऐड कर दो, हो गया ना 150 मिनट्स में कितने क्वेश्चंस हो गए, इसमें 40 ऐड कर दो, ये हो गया 150. ओके, नाउ यू विल सी दैट सो वर्बल तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है.
ऐसा होना नहीं चाहिए वंस वी आर डन विद वर्कशॉप, बट ठीक है, अगर तुमने यहाँ पे 30 भी स्कोर कर लिया, आई एम सेइंग 50 अटेम्प्ट कर रहे हो, 30 मिनट्स में 30 करेक्ट कर रहे हो, 110 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 140. स्टिल इट्स अ कट ऑफ फॉर JBMS. वी आर नॉट गोइंग बिलो दैट. 140 पे 99.99 परसेंटाइल होगा. The last student that was admitted in JBIMS last year got the marks of 136, right? So still you are in the range. Okay, you are not moving out of range. और बेलिंगर वगैरह तक, डालमिया तक हम पहुंचे ही नहीं. We are just talking about JBIMS, right? And below that it would be Sydney. So that is what your strategy would be. Okay, so जब तुम वर्कशॉप अटेंड कर रहे हो, you are solving all the problems. It should again be clear into your brain. क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए. अब ये स्ट्रैटेजी बेटर इंप्लीमेंट तब होगा जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है. एंड एज आई टोल्ड यू विल बी राइटिंग 30 मॉक टेस्ट विच विल बी गेटिंग अलॉन्ग विद दिस वर्कशॉप. तो जब तुम ये मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे, पहला 5 मॉक टेस्ट सॉल्व किया, स्ट्रैटेजी फिट नहीं हो रहा है, यू आर नॉट एबल टू स्पेंड राइट टाइम ऑन राइट सेक्शन, दैट इज ओके. देयर इज अ रीजन व्हाई वी आर राइटिंग 30. सो फर्स्ट 10 में तो वीकनेस, या फर्स्ट 5 में तो वीकनेस पता चलने में लग जाएगा कि मेरा वीकनेस क्या है, मेरा स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए. नेक्स्ट 5 to 7 पेपर्स यू विल जस्ट इम्प्लीमेंट द स्ट्रैटेजी. ठीक है, वीकनेस पता चल गया, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, अब मैंने उसको प्रैक्टिस कर लिया. लास्ट 15 to 20 test, okay, you will be just implementing the strategy again and again and again. मैकेनिकल कर दोगे इसको, सो दैट एग्जाम में जाओगे तो इनवॉलेंटरली क्या हो रहा है, वो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट हो रहा है. जैसे डिफिकल्ट पजल देखा, नहीं छोड़ो, ये अभी टाइम लेगा, हाँ इस पे जाओ, विजुअल रीजनिंग पे ये होता है, नहीं इस पे मैंने मॉक टेस्ट में बहुत टाइम स्पेंड किया था तो शायद अभी छोड़ देता हूँ, लास्ट में आता हूँ. फिर इवेंचुअली देखना है हमें कि हाँ हमारा कितना अटेम्प्ट हो चुका है, ये अटेम्प्ट होना चाहिए, कितना अटेम्प्ट कर रहे हैं हम. लेट्स ऐड ऑल ऑफ देम, 180 अटेम्प्ट्स कर रहे हैं हम, विच मीन्स 20 क्वेश्चन हम छोड़ दे रहे हैं. और 180 में से हम कितने करेक्ट करने का सोच रहे हैं, 150 करेक्ट करने का सोच रहे हैं, 30 हमारे रॉन्ग हो जाएंगे. ओके, दैट्स ऑल यू नीड. अगर 40 भी रॉन्ग हो जाते हैं, इन केस यू डोंट हैव गुड एक्यूरेसी इवन आफ्टर अ गुड प्रैक्टिस, स्टिल इट्स ओके. Still you are reaching on to 99.99 percentile even if you get 40 wrong. But that is not what our task is. Our task is to reach 140 with this workshop. Right, so I hope this gave you an idea about what am I talking about when I am telling you that what should be your strategy for 99.99 percentile. So कौन से सेक्शन में कितना टाइम दोगे और इतना ही टाइम क्यों देना है वो सेक्शन में. एट द सेम टाइम क्या एक्यूरेसी होना चाहिए मेरा, इतना अटेम्प्ट करूंगा तो कितने राइट होने चाहिए. और जो 20 क्वेश्चंस छोड़ने, वो भी मेरे दिमाग में क्लियर है कि वो कैसे टाइप के क्वेश्चंस होंगे. Right, so this is what you should know with respect to time that you should allocate to every section and how many questions you would be getting correct out of that.